Assalamu alaikum everyone, my name is Muhammad Dawar Zahid, and in this video we'll be talking about the motility in bacteria. We'll be talking about why it happens, how it happens, कौन से bacteria में किस किस्म की होती है, ठीक है, and इसके साथ साथ also some arrangements which are sort of important for you to know. And if you haven't watched the previous videos, I would suggest please go and watch those videos, as they're all sort of linked and they're going to help you a lot in understanding this video. And now let's get started. Okay guys, so talking about why do we need to move? ठीक है, दो reasons होते हैं. The first is chemotaxis, the second is phototaxis. Chemotaxis is in response to chemical stimuli, ठीक है, and जो phototaxis होता है that is in response to light stimuli, ठीक है. Let's talk about both of these and let's try and understand them, ठीक है. अच्छा, chemotaxis में क्या हो रहा होता है हमारे पास कि let's say कि we have a bacterial cell over here. Let's say कि there's like some nutrient pool over here, the bacteria would want to move over here, ठीक है, तो it's towards favorable conditions. अच्छा, and let's say कि यहाँ पे ना हमारे पास over here, let's say कि we have some toxics, let's say we have some HCl over here, ठीक है, which is toxic to the bacteria. अब the bacteria does not want to move over here, instead the bacteria wants to move away. So the bacteria will move away from the hydrochloric acid or NaO. अच्छा, so that's chemotaxis. The second is phototaxis. Phototaxis is, let's say if we have some, we have a photosynthetic bacteria, and that bacteria wants to move to a region where there's the most amount of light available for photosynthesis. So that's what it's going to do. And now let's talk about how it happens. So talking about the how, there's basically three main movements. There's flagellar movement, there's spirochetal movement, and then there's gliding movement, okay? I personally find gliding movement really fascinating. It's actually really interesting. We have to do all of these. So now let's get started with this. But before this, I want to just talk about one small thing. So हमारे पास जो bacilli होता है, that is bacilli and spirali are mostly mobile through the use of flagella. There are certain जो कि हमारे पास exceptions होती हैं. We'll talk about those. और जो coccus होता है, the spherical ones, they're pretty much all of them are non-motile. Again, the thing about microbio is that there are a lot of different bacteria, so there's a lot of different there's a lot of exceptions. कोई general rule नहीं होता, लेकिन for in the scope of our syllabus, this is a good rule of thumb to have. Now let's move on to flagellar movement. Okay guys, so talking about flagellar movement, इसके अंदर हमारे पास we use flagella, and flagella I hope अब तक पता हो जाना चाहिए flagella क्या होता है. Flagella is essentially it's sort of like this special thread-like organelle that is extending from the cell surface, ठीक है. अच्छा, an important thing to know is कि flagellar movement is going to be happening in liquid. It does not happen over solid surfaces, so it's only going to be happening in liquid. अच्छा, अब हमारे पास ना नेमिंग, ओके, सो दीज फैंसी स्केरी लुकिंग वर्ड्स, लेट्स वेट. और एक छोटा सा यहाँ पे रूल हम देखते हैं. पोलैरिटी और पोलर एसेंशियली मीन्स द एंड at which we have flagella and at which we have the flagella, ठीक है. और जो हमारे पास ट्राइकस होता है, ट्राइकस, ठीक है, that is essentially going to be telling us कि हमारे पास what is the number of the flagella. If we know both of these things, अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया, ठीक है. number of flagella, flagellum, whatever, I don't care. अच्छा, तो क्या चीज़ों की बेसिस पे नेमिंग? पोलैरिटी की बेसिस पे और ट्राइकस, मतलब कि नंबर एंड पोलैरिटी, किधर है और कितने हैं. Now let's move on to the scary looking thing over here. It's really easy. अगर ये चीज़ें समझ लिया बहुत आसान है. अच्छा, monopolar monotrichous. It means one flagella at one end, ठीक है. Total flagella हमारे पास कितने हैं? One, ठीक है. This is really important, the total thing. Let's get to it in a second. Bipolar monotrichous. It means one flagella each at two ends. मतलब एक flagella एक end पर है, एक flagella दूसरे end पे. तो total कितने हुए हमारे पास? Two. This is important, ठीक है. Monopolar bitrichous, ठीक है. Monopolar bitrichous का मतलब है two flagella at one end. देख रहे हो how easy it is. Total कितने हैं? Two. Okay. Bipolar bitrichous. This means कि we have two flagella each at two ends. तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 2 × 2 दैट इज गोइंग टू बी 4, ठीक है. अच्छा,
बिफोर वी मूव ऑन टू ऑल ऑफ दीज डिफरेंट थिंग्स, आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग. जो हमारे पास बायपोलर मोनोट्राइकस होता है, इसका एक ऑल्टरनेटिव नाम भी होता है हमारे पास, दैट इज एम्फीट्राइकस. ठीक है, एम्फीट्राइकस. एंड हमारे पास ये जो है बायपोलर बायट्राइकस, इसका भी एक ऑल्टरनेटिव नाम होता है जिसको हम कहते हैं एम्फी बाय, एक सेकेंड, एम्फी बायट्राइकस. तो डिफरेंस क्या है? बाय का डिफरेंस है. ठीक है, एम्फी बायट्राइकस. ओके, अब हम लोफोट्राइकस की बात करते हैं. लोफोट्राइकस मीन्स कि देयर इज अ टफ्ट. ठीक है, देयर इज अ टफ्ट एट वन एंड. टफ्ट का क्या मतलब है? मोर देन, लेट्स जस्ट यूज अ डिफरेंट कलर, जस्ट अ सेकंड. ओके, मोर देन 2 flagella at one end. At one end. ठीक है. एम्फीलोफोट्राइकस का क्या मतलब है? आई फील लाइक अब तुम लोगों ने फिगर आउट कर लिया होगा. इट बेसिकली मीन्स कि देयर इज मोर देन 2 flagella. मोर देन 2 flagella को हम कहते हैं टफ्ट. ठीक है, सो देयर इज अ टफ्ट एट बोथ एंड्स. ठीक है. अच्छा, पेरीट्राइकस बेसिकली मीन्स कि देयर इज दिस रैंडम flagella that is spread all over the cell. Random flagella all over the cell. ठीक है. अच्छा, atrachus का मतलब है no flagella. This means कि it had a flagella at certain, let's say उसके पास flagella था, but it had some form of cellular insult or cellular injury जिसकी वजह से it lost its flagella. ठीक है, let's say white blood cell ripped it off or whatever. ठीक है, तो अब वो atrachus हो गया. Now let's move on to this thing over here and let's just try and see कि ये सारी क्या हो रहा है हमारे पास. And I want you guys to try and attempt this on your own. वीडियो को पॉज करो और फिर देखो, इससे आपको ये चीज़ें सारी याद हो जाएंगी. ठीक है. लोफोट्राइकस का क्या मतलब है? लोफोट्राइकस मीन्स कि देयर इज अ टफ्ट दैट इज प्रेजेंट एट वन एंड. तो लेट्स से दिस इज व्हाट लोफोट्राइकस इज. अच्छा, मोनोपोलर monotrichus, it means one flagella at one end. So it's sort of like this. अच्छा, एम्फिलोलोफोट्राइकस. ठीक है, एम्फिलोलोफोट्राइकस का क्या मतलब था? सोचो जल्दी से. एम्फिलोलोफोट्राइकस मीन्स कि देयर इज अ टफ एट बोथ एंड्स, over here and up over here. ठीक है. पेरीट्राइकस का क्या मतलब है? कि देयर इज गोइंग टू बी रैंडम फ्लैजिला ऑल ओवर द सेल. लेट्स से कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है. इट्स वेरी सिंपल. ठीक है. ओके. बायपोलर बायट्राइकस का क्या मतलब था? बायपोलर बायट्राइकस मीन्स कि हमारे पास 2 flagella एट 2 ends, टोटल हमारे पास 4. तो 1 2 1 2. Pretty simple, right? अच्छा, atrachus का मतलब है कि I have no flagella. Let me just cross it over here. कि flagella था, अब वो चला गया. ठीक है. मोनोपोलर बायट्राइकस का क्या मतलब है? तो मोनोपोलर बायट्राइकस मीन्स कि there is 2 flagella at one end. बायपोलर मोनोट्राइकस का क्या मतलब है? कि one here, one here. ठीक है, कि 2 पोल्स पर एक एक फ्लैजिला मेरे पास लगा हुआ है. ठीक है. आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस. इसको याद वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बता दिया इसको कैसे करना है. इट्स प्रीटी सिंपल, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर स्पायरोचाइटल मूवमेंट एंड आवर ग्लाइडिंग मूवमेंट. मूविंग ऑन टू स्पायरोचाइटल मूवमेंट. स्पायरोकाइटल भी कुछ लोग कहते हैं, स्पायरोचीटल इन माय ओपिनियन. ठीक है, बिकॉज इट्स स्पायरोचीट्स, तो स्पायरोचीटल मूवमेंट. अच्छा, ये हमारे पास ना ऑब्वियसली इट्स ओनली गोइंग टू बी डन बाय स्पायरोचीट्स व्हिच इज अ स्पेसिफिक द स्पाइरल लाइक फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया. अच्छा, this is sort of done by this thing which we call as an endoflagellum. ठीक है. The reason why we call it an endoflagellum is it's sort of, let me show it to you guys. Okay, before that it's a modified form of your normal flagellum. ठीक है, so modified flagellum. ठीक है. अच्छा, अब हो क्या रहा होता है हमारे पास कि हमारे पास इट्स सॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट टू शो इट, लेकिन जस्ट काइंड ऑफ इमेजिन कि ये ना ऐसे करके बीच में, सो नियर टू दिस, सॉर्ट ऑफ लाइक दिस, इस तरह करके ना हमारे पास छोटे छोटे बिल्कुल फ्लैजिला से होते हैं. ठीक है. एंड मोस्ट लाइक द फ्लैजिला बॉडी इज सॉर्ट ऑफ इनसाइड द एक्चुअल ऑर्गेनिज्म की द सेल मेम्ब्रेन. इट्स सॉर्ट ऑफ ओरिजिनेट्स विद इन द पेरिप्लाज्म. बहुत इसमें छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं, बट इट्स नॉट हाई यील्ड फॉर यू टू नो. तो बस कीप दिस थिंग इन माइंड कि इसको एंडोफ्लैजिला कहते हैं. ठीक है. सॉर्ट ऑफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम द इनसाइड, इट्स डीपर compared to बाकी वो. और इसको we also call it an axial filament. ठीक है,
और इसका ये होता है कि इट्स सॉर्ट ऑफ originating deeper in the inner and outer membrane of the cell wall, ठीक है। और ये करता क्या है कि इट्स सॉर्ट ऑफ इसके लिए इट्स गोइंग टू अलाउ अस टू स्विम, इट्स गोइंग टू अलाउ अस टू फ्लेक्स, ठीक है। हम स्विम कर सकते हैं, हम फ्लेक्शन कर सकते हैं पूरे उसकी बैक्टीरियल बॉडी की, हम स्पिनिंग कर सकते हैं इसके रिजल्ट में, ठीक है। वी कैन ऑल्सो डू क्रीपिंग मोशन लाइक स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, एंड एट्सेट्रा। एंड इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक दिस ट्विस्टिंग मूवमेंट। मैं दिखाता हूँ एक दफ़ा, ठीक है, ट्विस्टिंग मोशन और मूवमेंट। ओके, सो लुक एट दिस। एसेंशियली ये जो फ्लैजिला होते हैं ये सारे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, देयर डीपर, बहुत ही डीप होते हैं। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं सॉर्ट ऑफ एबल टू मूव दिस इन दिस ट्विस्टिंग मूवमेंट, जिसकी वजह से इट कैन स्विम, इट कैन फ्लेक्स, इट कैन स्पिन और इट कैन क्रीप, ठीक है। दैट इज व्हाट वी हैव विद स्पायरोचीट्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ग्लाइडिंग मोटिलिटी। So about gliding motility, इसमें हमारे पास ना the first thing is कि we have some certain genera, ठीक है, of cyanobacteria और उसके साथ साथ myxobacteria, सॉरी, बैक्टीरिया, ठीक है, जो कि हमारे पास ये करवा रहे होते हैं। इसमें हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं which are high yield for you to know for your exams. उसमें we have oscillatoria, so oscillatoria, and then we have our myxococcus. I told you guys ना कि कुछ exceptions होती हैं। Generally coccus सारे हमारे immotile होते हैं, ठीक है, immobile होते हैं, लेकिन myxococcus as you can see हमारे पास gliding mobility कर रहा होता है। अच्छा, जो gliding movement होती है और mobility होती है, it's going to be over solid surfaces, ठीक है, that's important for you to know, ठीक है, solid surfaces पे कर रहा होता है। अच्छा, इसमें हमारे पास वी हैव नो फिलामेंटस स्ट्रक्चर। बाकी में तो था ना, अच्छा, एक में फ्लैजुलम थी, एक में वी हैड दिस मॉडिफाइड थिंग, दिस हैज़ नथिंग लाइक दैट, नो फिलामेंटस स्ट्रक्चर एट ऑल, इट्स क्वाइट प्रिमिटिव, ठीक है। इसमें क्या होता है, सॉर्ट ऑफ दिस स्लाइमी सब्सटेंस दैट वी आर सिक्रीटिंग, और उस स्लाइमी सब्सटेंस की सिक्रीशन की वजह से वी आर सॉर्ट ऑफ प्रोपेलिंग आवरसेल्व्स फॉरवर्ड इन द सेम वे हाउ अ गार्डन स्नेल मूव्स, ठीक है, कि हम उसको उस तरह से कर रहे हैं। बट वन मोर थिंग, द एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज स्टिल अननोन। वी डू नॉट नो what the exact mechanism is, how this entire snail like thing works, ठीक है, in terms of these bacteria we do not know, ठीक है। अच्छा, हमारे पास दो तीन डिफरेंट वो होती हैं। द फर्स्ट वन आई हैव टोल्ड यू गाइस इज के वी आर गोइंग टू बी पुशिंग दिस स्लाइम, लेट मी जस्ट राइट दिस। द फर्स्ट हाइपोथेसिस इज के यू पुश द स्लाइम, उस स्लाइम की वजह से आप हो रहे होते हो। द सेकंड वन इज के दीज सॉर्ट ऑफ जनरेट दीज कॉन्ट्रैक्टाइल वेव्स, उन वेव्स की वजह से हम लोग मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज कि हम लोग एक सरफेस टेंशन की बेसिस पे, सो वी आर सिक्रीटिंग दिस सरफेस टेंशन की बेसिस पे, सॉर्ट ऑफ लाइक I'm thinking whether I should go in this amount of detail or not, but just sort of imagine, कैसे समझाओ, like using a trampoline to propel yourself forward. It's sort of like that. कि surface tension जो होती है आप उसको use करके कर रहे हो। तो again I don't want to go into a lot of detail because it is not high yield at all, ठीक है, not over here, not in the future, you don't need to know this, it's just interesting, but khair. So that's all for today. Motility in bacteria, we've covered it. Now in our next video we will inshallah be talking about our I want to talk about the structure of the bacterial flagella in more detail. अभी हमने discuss कर लिया कि like क्या होता है, like what does it do and all these things, ठीक है, but I want to still discuss it in more detail, तो हम उसको अगली वीडियो में करेंगे। And that's all for today. Thank you so much for watching and I hope you guys had fun and see you later inshallah. Allah Hafiz.